back to my channel. This is Shivi here and सारांशी कैमरा की उस साइड. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी टर्की रोड ट्रिप की 11-day itinerary. Recently we did a road trip in Turkey. First thing that I want to say is that Turkey is truly mesmerizing. Driving around in Turkey took us to so many beautiful sites of the country and showed us many beautiful places that we are in love. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट कौन कौन से हमने सिटीज़ कवर किए, सेकेंड किस किस सिटीज़ में कितना टाइम स्पेंड किया एंड हमें क्या लगता है कि कहाँ और टाइम स्पेंड करना चाहिए था, थर्ड इज किस जगह को आपको ज़रूर कवर करना चाहिए, एंड द लास्ट थिंग इज़ लोकल फूड दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई एंड स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस. इस वीडियो में हम आपको एक ओवरव्यू देने वाले हैं एंड इसके बाद में हम सिटी वाइज वीडियोज़ भी डालने वाले हैं सो दैट यू कैन प्लान योर ट्रिप. Most of the people who come to Turkey, we started our trip from Istanbul. इस्तांबुल में हमने स्पेंड किए 4 दिन और ये डेफिनेटली आपको रखने ही चाहिए. There is just so much to see and do in this bustling city of 20 million people. तो हमने अपनी ट्रिप ऐसे प्लान की थी कि स्टार्टिंग के 2 days इस्तांबुल में रखे एंड ऐसे ही ट्रिप के एंड में भी हमने 2 days इस्तांबुल में. We started exploring Istanbul by visiting Hagia Sophia. Built 1500 years back, Hagia Sophia is famous for its massive dome structures. Hagia Sophia के एकदम सामने है ब्लू मॉस्क जो फेमस है अपने ब्यूटीफुल व्यू इंटीरियर्स के लिए. टर्किश टी. तो यहाँ पे आप किसी भी शॉप में जाएंगे या रेस्टोरेंट में जाएंगे या कहीं भी आप जा रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं, दे ऑफर टर्किश टी एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री है एंड इट्स वेरी नाइस बिकॉज ठंड में ना गर्म चाय में मज़ा आ रहा है एक्चुअली. सो अनदर लोकल फूड दैट वेजिटेरियंस कैन हैव हियर इज़ वेज पिदे. पिदे इज़ टर्किश पिज़्ज़ा. यूजुअली लोकल टर्किश पिदे इज़ नॉन वेज जिसमें मीट का फिलिंग होता है बट आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस भी ईजिली मिल जाएंगे. Next local cuisine we loved and you must have is Turkish baklava. So I love baklava and finally मैं टर्की में खा रही हूँ baklava. आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी शीट्स हैं, बहुत सारे लेयर्स होती हैं. इन्हें बोलते हैं फाइलो शीट्स. There are almost 30 to 50 sheets. So क्या होता है हर शीट को एक के ऊपर एक लगाया जाता है एंड उसके बीच में बटर की लेयर लगती है एंड फिर उसे बेक किया जाता है. एंड दिस वन इज़ पिस्ताशियो baklava. You always eat it like this. You reverse it and then eat it. अदरवाइज ये सारे लेयर्स खुल जाते हैं. Our next stop was Grand Bazaar. Grand Bazaar is world's largest and oldest covered market which has like 40,000 shops. Carpets to spices to teas to lamps to jewelry. You will find everything in this market. But like every famous tourist destination, prices are high and definitely you should be prepared to bargain a lot. रात को आप जा सकते हैं गलता ब्रिज. Here you will see lot of locals and fishermen catching fresh fishes and यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है बॉस्फोरस रिवर का and beautiful city का. Coming back to Istanbul, towards the end of our trip, we visited Galata Tower. There are so many amazing cafes in the lane in front of the tower. आप यहाँ आराम से एक full evening spend कर सकते हैं. Our next stop was Istiklal Street. This is the ever bustling street जहाँ पे एक दिन में 30 लाख से भी ज़्यादा लोग पास करते हैं. इसके एक एंड पे है तकसीम स्क्वायर एंड द अदर एंड इज द गालता टावर. यहाँ पर आप इजीली एक फुल डे स्पेंड कर सकते हो. There is so much to do. You will find every famous brand where you can shop till you drop. Famous food joints, Turkish ice cream, historical cinemas, art galleries and live performances. I would again stress plan at least half a day for this Istiklal Street. Spicy yogurt. Yeah.
कुसकुस कुसकुस नहीं उसको तो पता For all the Gram people, you must have seen colorful videos and photos on Gram definitely. And ये सब photos होती हैं बलात की. This is Balat. Visit here for those Insta-worthy shots. Last we visited Suleymaniye Mosque. So out of the 3 mosques that we have visited so far, we personally found this one the most beautiful. With a big complex, garden and a view of the city, we would highly recommend that you visit here. हमने रोड ट्रिप स्टार्ट की इस्तांबुल से और हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था चेस्मे। पहले पड़ता है एक टाउन कॉल्ड अलाकाती। ऑनेस्टली हमने ये प्लान नहीं किया था एंड बट वी सॉ दिस टाउन ऑन द वे एंड फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड प्लान्ड अ डिटूर टू दिस प्लेस एंड वहाँ जाके हमें पता लगा दैट दिस इज़ अ चार्मिंग स्मॉल टाउन जो एक बॉलीवुड सॉन्ग में भी फीचर हुआ है। अलाकाती इज़ रियली कूल, इट्स हिप, स्टाइलिश एंड चॉक फुल ऑफ बुटीक होटल्स। दिस टाउन हैज़ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीस एंड आपको ग्रीस की ही वाइब्स देती है। Stone houses, narrow streets, boutique hotels and restaurants with tables on the streets. So, and during summers, it is also famous for its nightlife in the region. So we had a lunch in one such cool cafe and then moved to Cheshme. चेशमे इज़ अ वेकेशनर्स पैराडाइज। यहाँ यूरोप से बहुत लोग आते हैं फॉर स्पेंडिंग टाइम इन समर्स, एंजॉइंग बीचेस, कैफेज एंड नाइट लाइफ। द फूड इज़ ग्रेट, सी इज स्टनिंग। हम यहाँ विंटर्स में गए थे तो एट दिस टाइम यू कैन सी द क्राउड्स आर लेसर एंड द टाउन इज क्वाइटर। यहाँ पे मरीना के पास में बहुत अच्छा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप भी है, काफ़ी शॉप्स हैं एंड बहुत ही कूल कैफ़ेज़ है। तो हम लोग अभी मॉर्निंग में वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। तो यस, लेट्स गो। Frankly, after spending a day here, we regretted not keeping at least 2 days for this place. This place is amazing.
आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ दो जगह पे, एक है इफेसस एंड दूसरी जगह है पामुक्काले। आपने पामुक्काले बहुत देखा होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है वो। एंड व्हेन वी वर लुकिंग फॉर द प्लेस देयर वर मिक्स्ड रिव्यूज़ कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट वर्थ इट। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जाके आएंगे, देखेंगे, बिकॉज दिखने में काफ़ी सुंदर है। सो वी रियली वांट टू एक्सपीरियंस इट आवरसेल्व्स कि एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं है। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन इन इफेसस वाज एक्चुअली दिस इफेसस थिएटर। ये एक्चुअली बना था ऑलमोस्ट 45 AD में, एंड ये जब बना था उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा थिएटर था। ऑलमोस्ट 20 to 25,000 पीपल कुड सिट टुगेदर इन दिस थिएटर। हम पामुक्काले पहुंच गए हैं, पहुंचे लेट हैं, सो जाएंगे। सुबह जाकर के वील एक्सप्लोर दी ट्रैवर्टीन्स, जो यहाँ का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वो करते हैं, फिर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे। टुमारो वी प्लान टू गो टू अंटालिया फ्रॉम हियर। वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम रास्ते में एक जगह स्टॉप लेंगे। देयर इज़ अ वेरी नाइस लेक इन बिटवीन। कैपेडोकिया की तरह यहाँ भी बलून राइड्स होती हैं। ऑफ कोर्स नॉट एज मेनी बलून्स are there as Cappadocia, but you can still have a balloon ride experience. हम लोग जहाँ से हमने टिकट लिया वहाँ से ट्रैवर्टीन्स तक आने के लिए देयर वाज सम 3-4 किलोमीटर की वॉक के बीच में हिरापोलिस एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखने की हैं। बट हम डायरेक्टली ट्रैवर्टीन्स आ रहे थे तो हमने एक बगी ली। वन वे बगी कॉस्ट यू अराउंड 80 है, विच इज़ अराउंड 50 रुपीज़। सो अभी हम पहुँच गए हैं, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ट्रैवर्टीन्स। गरम पानी बहुत सही है। हमने सुना था कि ट्रैवर्टीन्स में रिसेंटली वाटर कम हो गया है एंड इट मे बी नॉट वर्थ विजिटिंग, बट ऑनेस्टली इन आवर एक्सपीरियंस ड्यू टू अ ब्रेक इन टूरिस्ट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ट्रैवर्टीन्स हैव रिकवर्ड एंड हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वी वुड रिकमेंड यू टू विजिट एंड स्पेंड मैक्सिमम अ डे हियर। I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. पामुक्काले से आज हम अंटालिया जा रहे हैं। दिस जर्नी इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4 hours। इन दोनों के बीच में एक जगह पड़ती है विच इज कॉल्ड लेक साल्दा। इसको एक्चुअली मालदीव्स और टर्की बोलते हैं ये लोग, एंड इट एक्चुअली लुक्स लाइक दैट, जस्ट लुक एट द कलर्स। So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. I'm gonna tell you that I need you every day. So after 4 hours of drive and exploring the breathtaking Lake Salda, हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं विच इज़ अंटालिया। एंड ये जो आप व्यू देख रहे हो ये हमारी रूम से है अंटालिया के। फैबुलस, लाइक बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं लाइन से एंड काफ़ी सही लग रही है। एंड आई थिंक इवनिंग होने लगी है तो लाइट्स वगैरह भी ऑन हो गई है। एकदम वो यूरोप की फील आती है, एकदम बाहर कैफ़े कल्चर जो है वैसे टाइप की फील है। गुड थिंग इज़ कि जब हमने मेन्यू एक्सप्लोर किया बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल रहे हैं एंड फाइनली इट्स गुड टू एक्चुअली सी सो मेनी पीपल हियर बिकॉज कोविड है ये लग रहा था हमें इतने टाइम से, बट यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है ऐसा। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी लेन्स हैं, तो हम एक लेन में आके बैठे हैं अभी। तो बहुत सा म्यूजिक चल रहा था, लाइव म्यूजिक। This is one of the main 2 beaches in Antalya with pebbles and clear blue water. You can admire the sparkling sea with Taurus mountains and steep cliffs in the background.
नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर होटल। वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन उसके बाद में ऑलमोस्ट अराउंड 9:30-10 के अराउंड हम निकलेंगे। आज हमारा प्लान है दैट हम जाएंगे फ्रॉम अंटालिया टू कैपेडोकिया which is almost around 7.5 hour drive. See you guys in Cappadocia. जस्ट ना कैपेडोकिया पहुँचे। कैपेडोकिया में गौरमे करके है जगह, वहाँ रुके एंड यहाँ बहुत सारे केव होटल्स हैं। तो हमने भी स्टे अपना नेक्स्ट 3 डेज़ का गौरमे में ही एक केव स्वीट में ही किया है बिकॉज लाइट्स कम है यहाँ पे, तो आपको उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है बट ये एक्चुअली काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड सुबह जब थोड़ी लाइट्स होंगी तब मैं आपको वापस से दिखाती हूँ। We are staying in a cave suite. Cappadocia, the land of horses and these days hot air balloons. Drive to Cappadocia from Antalya is actually the longest. It took us almost around 8 to 9 hours. Needless to say, this is #1 attraction in Cappadocia. Hundreds of balloons fly daily because of its unique weather conditions. Balloons can fly here 250 plus days in a year. So first off, keep enough days in Cappadocia so that you can get a balloon ride for sure. At least 3 दिन आप ज़रूर रखना है यहाँ पे, so that अगर एक दिन नहीं हो पाती balloon ride तो आप next day कर सकते हो. Unfortunately for us, इन 3 दिनों में हमें balloon ride नहीं मिली because the weather was really bad and शायद Turkey wants us to come back. But nevertheless, there are so many things to see and do in Cappadocia town itself. And हम आपको दिखाने वाले हैं वो सब क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बलून राइड इन कैपेडोकिया। यहाँ पे स्नो हो रही है एंड हम लोग गए थे कावुसिन कासल, वो अंडर रेनोवेशन है तो बंद है। बट अभी हम आए हैं ऊँची सारा कासल करके वहाँ पे, बट यहाँ पे स्नोफॉल है और बहुत ठंड है। थोड़ी मेहनत थी चढ़ने में और ठंड भी ऑफ कोर्स थी, बट बहुत ही अच्छा व्यू है। लुक एट इट, सो एब्सोल्युटली 100% रिकमेंडेड। आज है डे 2 ऑफ कैपेडोकिया। सुबह ब्रेकफास्ट किया हमने एंड हम आए हैं लव वैली एंड बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं वो लव वैली है। इट्स नेम इज़ बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ शेप। यहाँ कैपेडोकिया के पास में देर आर मैनी अंडरग्राउंड सिटीज़, अप्रॉक्सीमेटली 30 प्लस कुछ हैं। उसमें से 2 हैं जो काफ़ी बड़े हैं एक्चुअली। वन इज़ देरिंगकुयू, द अदर वन इज़ केमकली। तो हम लोग आए हैं देरिंगकुयू में। यहाँ पे हम जस्ट इसकी एंट्रेंस के अंदर जा रहे हैं। सो यहाँ पे 8 फ्लोर्स हैं अंडरग्राउंड में एंड ऑलमोस्ट 20,000 इनहैबिटेंट्स यहाँ रहते थे एक टाइम को।
इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा कि कैपेडोकिया में जब लोग आते हैं तो कारपेट के बैकग्राउंड के साथ फोटोशूट करवाते हैं, तो वो सारी पिक्चर्स एक्चुअली गैलरी इकमान करके एक शॉप है वहाँ पे ली जाती हैं। एंड ये जस्ट हमारे पीछे है। स्टे टू आफ्टरनून एंड हमने लंच किया और अभी लंच करके हम लोग सीधा आए हैं गौरमे ओपन एयर म्यूज़ियम। यहाँ पे बेसिकली आप पीछे जितना देख रहे हो ये सब जो रॉक फॉर्मेशंस हैं, इनके अंदर ऊपर आप देख रहे हो होल्स भी हैं। यहाँ बहुत सारे चर्चेज़ हैं एक्चुअली, यहाँ पे काफ़ी सारे एंशियंट चर्चेज़ हैं। ये जो चर्चेज़ के अंदर पेंटिंग्स हो रखी हैं टेल्स द स्टोरी ऑफ जीसस। सो उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी स्टोरीज यहाँ पेंटेड है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दैट वाज कि जो लोग उस पुराने ज़माने में जो पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, वो लोग एटलीस्ट पेंटिंग्स देख करके वो स्टोरी समझ पाएंगे। I hope you enjoyed watching this video and this video will help you plan your trip better. So thank you for watching and stay tuned for further videos.